हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ लितेश राठौड़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड share my videos to your friends and relatives and colleagues also, so that everybody will get the useful information about the income tax and management topic access. Friends, today I will discuss about the very important information about the determination of residential status in income tax. Yes friends, ये बहुत ही important topic है जहाँ पे आपकी रेसिडेंट स्टेटस क्या है, वेदर यू आर रेसिडेंट इन इंडिया, वेदर यू आर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, ये स्टेटस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन माय एंटायर प्रेजेंटेशन आई विल go through about each and every aspect of about the residential status of individual only. Yes, individual, na hi about the company, firm or any other entity. It is only for the individual and the process of how to calculate the number of days in India, what is your stay in India and the important amendments. And friends, ये पूरा मेरा प्रेजेंटेशन इंग्लिश और हिंदी में दोनों में समझाओगे, so that it will reach to n number of people, whether you are from accounting background, whether you are from taxation background, everybody will get this important information. So friends, without wasting your time, let's go to the our important topic of discussion. Yes, residential status of an individual for income tax. Friends, आज के मेरे प्रेजेंटेशन में I will go through about the first types of residential status of individual under the Income Tax Act 1961. Second, important explanation for stays and number of days in India. ये बहुत ही important है कि how to calculate your stays and number of days in India. Third, what is resident in India? Resident किसको बोलते हैं? Ordinary resident in India, deemed resident. This is the new clause section 6(1) as per the Finance Act 2020 and Circular 11 2020 जो 8 मई को आया था after this coronavirus issue. Friends, so we will go one by one each presentation. Now, types of resident status of individual under the Income Tax Act 1961. Friends, ये बहुत ही important है कि how to determine your resident status under the Income Tax Act. This plays a very vital role in order to determine whether a person comes under the tax bracket or not. अगर आप इंडिया में रेसिडेंट हो तो ही आपको टैक्स पे करना है। आप नॉन रेसिडेंट है अगर हो तो आपको जो भी इंडिया में अर्न करते हैं वही आपको टैक्स पे करना है। जो भी इनकम आउटसाइड इंडिया आप अर्न करते हो उसको टैक्स इंडिया में पे नहीं करना पड़ता है अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो। So Section 6 of the Income Tax Act 1961 deals about the concept of resident for income tax purposes. Finance Act 2020 dated 23rd March 2020 amended Section 6 of the Income Tax Act 1961. The said amendment will come into effect from April 2021. So that it will come into effect from assessment year 2021-22 and subsequent assessment year. तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया था कि व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। सेक्शन 6 में हम लोग बोलते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेसिडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेसिडेंट। एक तो होता है कि रेसिडेंट इन इंडिया, एक होते हैं नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट में भी एक होते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड होते हैं नॉन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फ्रेंड्स, लेट्स से आई बॉर्न एंड बॉट अप इन इंडिया, तो मैं रेसिडेंट हूँ। तो वैसे ही अगर कोई फॉरेनर अगर यहाँ पे आता है तो फॉरेनर अगर कोई है तो वो तो नॉन रेसिडेंट कहलाया जाता है, बिकॉज वो वहाँ पे बॉर्न एंड बॉटअप होता है उसके होम कंट्री पे। होम कंट्री मीन्स जहाँ पे वो रहता है। तो इसलिए इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज वंस योर रेसिडेंशियल स्टेटस हैज बीन डिटरमाइंड, देन whatever the income earned in India or income earned outside India will be taxable in India. क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी इनकम हम लोग अर्न करते हैं वो हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से ही टैक्सेबल होती है। फ्रेंड्स, यू रिमेम्बर दैट व्हाइल फाइलिंग द इनकम रिटर्न एक टैब आता है वेदर यू आर रेसिडेंट और नॉट, तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं रेसिडेंट और नॉट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेसिडेंट स्टेटस, हाउ टू डिटरमाइन द रेसिडेंट स्टेटस इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये चार्ट पे से आपको पता चल जाएगा कि रेसिडेंट स्टेटस दो टाइप के होते हैं, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेसिडेंट। नाउ गोइंग बैक टू सेकंड स्लाइड्स, important explanation for stays and number of days in India. अभी what is the calculation for number of stays, how to calculate number of days in India, ये बहुत ही important है।
relevant previous year means the previous year for which residential status is determined. Friends, इसका मतलब होता है relevant previous year means let's say now we are in the financial year 2021-22. प्रीवियस ईयर मेरा कौन सा था 2020-21, उसके पहले का प्रीवियस था 1920. नाउ बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस इशू एवरीबडी इज एट होम ओनली, सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट गोइंग आउटसाइड इंडिया ऑल्सो. सो लेट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 1920 का. सो इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज योर प्रीवियस ईयर. मेरा प्रीवियस ईयर अगर 2019-20 है एग्जाम्पल, तो मेरा असेसमेंट होता है 2021. असेसमेंट इज 2020. सो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज माय प्रीवियस ईयर टू कैलकुलेट द रेसिडेंशियल स्टेटस. इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ स्टेज इन इंडिया, it is not necessary that stay should be for a continuous period. What is to be seen is the total number of days of stays in India during the relevant previous year. ये फ्रेंड्स इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में. मुझे मेरा नंबर ऑफ डेज इन इंडिया कैलकुलेट करने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि स्टे शुड बी कंटिन्यूस पीरियड. नंबर ऑफ डेज इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द रेसिडेंशियल. फॉर एग्जांपल अगर मैं अप्रैल में इंडिया से अगर मैं बाहर जाता हूँ एग्जांपल लेट से, और वापस जून में आता हूँ इंडिया में, देन वापस मैं अक्टूबर में आउटसाइड इंडिया जाता हूँ, एंड मैं दिसंबर में आता हूँ, वापस मैं फरवरी में जाके मैं मार्च करता हूँ. तो कंटिन्यूस स्टे ऐसा नहीं कि अगर मैं पूरे साल में 2-3 बार भी बाहर जा सकता हूँ, मैं इंडिया में भी रह सकता हूँ. सो नंबर ऑफ डेज शुड नॉट बी ए कंटिन्यूस पीरियड. जितने डेज में मैं इंडिया में हूँ वो कैलकुलेट होता है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस. इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखा है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द स्टे शुड बी कंटिन्यूस. आप ब्रेक करके भी इंडिया में रह सकते हो, बिकॉज कभी कभी कोई बिजनेस मीटिंग के लिए हम लोग आउटसाइड इंडिया जाते हैं, इंडियन वापस हम लोग इंडिया में आते हैं. तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है. इट इज ऑल्सो not necessary that stay should be at one place. For example, he may stay at Bombay for 90 days and then go out of India. On return in the same previous year, he may stay at Delhi for 120 days during the same previous year. His total stay in India will be 210 days for the purpose of calculating the restriction, because 90 days and 120 days, 90 days मुंबई में and 120 days दिल्ली में, so 210 days होते हैं. इसलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मुझे इंडिया में एक ही जगह पे रहना है. मैं इंडिया में कहाँ पे भी रह सकता हूँ. सो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग योर नंबर ऑफ डेज, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको एक प्लेस पे ही रहना है. इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 182 days, the day individual enters in India and the day he leaves India should both be treated as stay in India. फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत जन कैलकुलेशन करते टाइम कभी मिस्टेक कर लेते हैं. मैं इंडिया में एंट्री करता हूँ एंड मैं इंडिया से अगर समझो मैं डिपार्ट करता हूँ, बाहर जाता हूँ, तो दोनों डेज को हम लोग को काउंट करना है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग दी रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया. वो दोनों डेट हम लोग को इंक्लूड करना है फॉर द पर्पज ऑफ स्टे इन इंडिया. Place and purpose of stay in India is immaterial. Presence in territorial waters of India would also be regarded as presence in India. Friends, ये बहुत ही important है to understand that कि मैं बिजनेस के लिए इंडिया में रहता हूँ, मैं कोई फैमिली मीटिंग के लिए, फैमिली कोई फंक्शन है, या मेरी पर्सनल विजिट्स है, मैं कोई भी वेकेशन के लिए आता हूँ. सो पर्पज इज इमटेरियल, प्रेजेंस इज इम्पोर्टेंट. मैं इंडिया में अगर लेट से मैं मुंबई टू गोवा में मैं अगर वाटर टेरिटोरियल में भी रहता हूँ, तो वो भी इंडिया में प्रेजेंट कहा जाता है. वहां पे यू टू कंसिडर द प्रेजेंस, नॉट द पर्पस. नाउ फ्रेंड्स, व्हाट इज रेसिडेंट इंडिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि रेसिडेंट इंडिया क्या है, बिकॉज as per section 6(1) of the income tax act 1961, a taxpayer would qualify as a resident of India if he satisfied one of the following two conditions. फ्रेंड्स, सेक्शन 6 जो इनकम टैक्स में दो कंडीशन है, उसको हम लोग बेसिक कंडीशन बोलते हैं. अगर वो दोनों कंडीशन में से कोई भी एक भी फुलफिल करता हूँ तो मैं इंडिया में रेसिडेंट बोला जाता हूँ. लेट से अभी कौन सी कंडीशन यहाँ पे मैंने मार्क की है. फर्स्ट, स्टे इन इंडिया फॉर 182 days और मोर,
और सेकेंड कंडीशन है stay in India immediately for preceding years is 365 days or more and ये सेकेंड कंडीशन में ही एंड है एंड 60 days और मोर इन द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर. नाउ लेट्स से व्हाट इज माय प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक. अगर मैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 तक मोर देन 182 डेज रहता हूँ तो मैं इंडिया में रेसिडेंट ट्रीट माना जाऊंगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट. बिकॉज फ्रेंड्स मैंने पहले भी बोला था कि वंस योर रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड देन योर टैक्सेबिलिटी विल डिटरमाइन. बिकॉज अगर मैं रेसिडेंट इंडिया में हूँ तो ही मुझे इंडिया की इनकम जो भी मैं अर्न करता हूँ और आउटसाइड इंडिया जो भी अर्न करता हूँ वो मुझे उसके ऊपर टैक्स पे करना है. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड करने के लिए. तो दोनों में से एक भी कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो देन यू आर रेसिडेंट इन इंडिया. फर्स्ट कंडीशन तो बहुत सिंपल है, अगर आप 182 डेज से ज्यादा है तो भी आप रेसिडेंट माना जाओगे. सेकेंड कंडीशन स्टे इन इंडिया फॉर इमीडिएटली फॉर प्रीसीडिंग ईयर इन 365 डेज. अगर मैं प्रीवियस ईयर 2020-21 कैलकुलेट करता हूँ तो उसके और प्रीसीडिंग 4 साल में मेरा 365 डेज से ज्यादा है इंडिया में प्रेजेंट एंड वही ईयर में 2021 में अगर मैं 60 डेज से ज्यादा हूँ तो भी मैं रेसिडेंट माना जाऊंगा. सो ये दोनों में से एक फुलफिल करोगे तो आप रेसिडेंट ट्रीट माने जाओगे. एक्सेप्शन और कंसेशन टू द अबाव रूल. फ्रेंड्स हर एक कंडीशन में कोई भी एक एक्सेप्शन होते हैं. एक्सेप्शन मीन्स हम लोग कंसेशन देते हैं कभी कभी बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस. तो व्हाट इज दैट रीजन ये जानते हैं कि फर्स्ट बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया who lives India in any previous year as a member of the crew of an Indian ship or for the purpose of employment outside India, he will be qualified as a resident of India only if he stays in India for more than 182 days instead of 60 days mentioned in point 2 above. ये जो point 2 है उसमें 60 डेज यहाँ पे बोला है तो इंस्टेड ऑफ 60 डेज अगर वो 182 डेज से ज्यादा अगर इंडिया में है तो ही वो रेसिडेंट ट्रीट किया जाएगा बट ओनली फॉर सर्टन पर्सन लाइक ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप. अगर क्रू ऑफ इंडियन शिप को क्यों बोले बिकॉज अगर कोई इंडियन शिप में आप एम्प्लॉयमेंट में हो क्रू में हो तो ऑब्वियसली आप इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहोगे तो ही आपको रेसिडेंट माना जाएगा. बिकॉज वंस यू अगर आप इंडिया से आउटसाइड जाते हो तो आप 3-4 महीने तक वापस इंडिया में नहीं आते बिकॉज वो आपका जर्नी बहुत लंबा होता है. एंड सेकेंड अगर आप आउटसाइड इंडिया कोई भी एम्प्लॉयमेंट मीन्स नौकरी के लिए जॉब के लिए जाते हो एंड आप इंडिया में वापस आते हो तो देन 60 डेज ये जो है वो 182 डेज ही हो जाएगा काउंट करने के लिए. तो आपको कंपलसरी आप 182 डेज अगर है तो ये कंडीशन में आप रेसिडेंट माने जाओगे. सेकेंड कंडीशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर अमेंडमेंट हुआ है फाइनेंस एक्ट 2020 में. बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. नाउ सिटीजन ऑफ इंडिया मीन्स आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स लेट्स से आई एम स्टेइंग आउटसाइड इंडिया, मैं इंडिया के बाहर रह रहा हूँ एनी कंट्री यूएस यूके वॉट एवर यूरोप कंट्री बट मैं इंडियन ओरिजिन को मेरे फादर मेरे ग्रैंडफादर अगर इंडिया में है, मैं बॉर्न एंड बॉट अप में इंडिया में हूँ तो मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाऊंगा. हु बीइंग आउटसाइड इंडिया comes on a visit to India in any previous year, he will be qualified as a resident in India if he stays in India for 120 days or more instead of 60 days again in point 2 above, and whose total income other than foreign sources exceed rupees 50 lakhs during the previous year. And this is applicable only for from the financial year 2020-21 onwards as amended by Finance Act 2020. फ्रेंड्स मैं अभी इसका आपको मीनिंग बताता हूँ. अगर कोई इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो मैंने आपको बताया वो बीइंग एन आउटसाइड इंडिया जो आउटसाइड इंडिया सेटल है वो कम्स ऑन ए विजिट. अगर कोई इंडिया में कोई विजिट के लिए आता है, विजिट मीन्स वेकेशन हो या कोई विजिट पर्सनल विजिट हो कोई भी ईयर्स में, देन एंड अगर वो 120 डेज से ज्यादा रहता है तो जो ये सेकेंड कंडीशन बेसिक कंडीशन में जो 60 डेज है अगर वो 60 डेज उसको एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको 120 डेज से ज्यादा है तो ही वो रेसिडेंट माना जाएगा सब्जेक्ट टू हिज इनकम इन इंडिया. अगर उसकी इंडिया में इनकम 15 लाख से ऊपर है
तो भी वो रेसिडेंट माना जाएगा। अगर लेट से वो 120 डेज अगर रहता है बट उसकी इनकम इंडिया इंडिया की इनकम लेट से इंडिया में कोई भी पर्सन आउटसाइड इंडिया है तो ऑब्वियसली उसका इंडिया में अगर इनकम कोई रेंटल इनकम है, कोई अदर प्रॉपर्टी इनकम है, शेयर्स इनकम है, वट एवर इनकम है अदर देन फॉरेन इनकम, तो वो 50 लाख से नीचे है तो वो रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, फिर वो अदर कंडीशन में फुलफिल होगा। तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ गोइंग बैक टू रेसिडेंट, एक बार आप रेसिडेंट बन जाते हो, अगर बेसिक कंडीशन फुलफिल हो जाती है, देन व्हाट इज, अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नाउ व्हाट इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट? फ्रेंड, ऑर्डिनरी वर्ड का मीनिंग ये है, ऑर्डिनरी मीन्स जनरल, मतलब मैं बोलूंगा कि मैं यहाँ का स्थायी नागरिक हूँ। आई एम दी ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, मीन्स रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये कंडीशन एज पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 of the income tax act 1961, if an individual qualifies the basic condition of resident, then next step is to determine whether the person is resident and ordinary resident, means उसको ROR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और resident and not ordinary resident, he will be a resident and ordinary resident if he meets the both the following condition. Now ordinary resident के लिए आपको दोनों कंडीशन फुलफिल करना है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? He has been resident in India in at least 2 out of 10 years immediately previous year। मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2020-21। तो उसके बाद उसके जो पहले के जो 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स में से अगर वो 2 साल भी रेसिडेंट है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। एंड सेकंड कंडीशन, his number of stays in India for at least 730 days in 7 preceding previous year। फ्रेंड्स, ये कंडीशन भी बहुत इजी है डिटरमाइन करने के लिए। अगर मैं लास्ट ईयर के 7 ईयर्स में 730 डेज से अगर मैं ज़्यादा रहता हूँ तो मैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लूँगा। फ्रेंड्स, जो भी यहाँ का नागरिक है, जो परमानेंट रेसिडेंट इंडिया है, वो ऑब्वियसली इंडिया में ही रहता है। बट लेट से अगर कोई कंटिन्यूसली आउटसाइड इंडिया जाता रहता है बिजनेस पर्पस के लिए या उसके विजिट के लिए या उसका कोई बड़ा बिजनेस है, तो ये कंडीशन फुलफिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स, आप ये कंडीशन देख लीजिए, इफ ही रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 out of 10 years and has stayed in India at least 730 days in 7 preceding years। अगर ये कंडीशन अगर वो दोनों फुलफिल करता है तो ही वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। एंड वंस यू फुलफिल्ड all the two condition, then your entire Indian income जो भी इंडिया में आप अर्न करते हो एंड फॉरेन में भी आप अर्न करते हो, वो सभी टैक्सेबल होते हैं। Therefore, if an individual fails to satisfy even one of the above condition, he would be resident and not ordinary resident। Once you are resident and not ordinary resident, then your tax liability, tax implication will be different। Then only Indian income आपको टैक्सेबल होगी, आपकी फॉरेन इनकम को टैक्सेबल इंडिया में नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स, फाइनेंस एक्ट 2020, आपको मालूम है एवरी ईयर बजट पास होता है फरवरी में। तो लास्ट ईयर फाइनेंस एक्ट 2020 में कुछ अमेंडमेंट्स आए थे, मैं आपको ये पहले पढ़ के बताता हूँ। However, with effect from assessment 2020-21 means previous year 2020-21, the Finance Act 2020 has inserted the following two more situations where a resident person is deemed to be not ordinary resident in India. First, an Indian citizen or a person of Indian origin whose total income, other than the income from foreign sources, exceed 15 lakhs during the previous year and who has been in India for a period of 120 days or more but less than 182 days. Explanation 1B of section 6. Second, an Indian citizen who is deemed to be resident in India as per the new clause section 6 subsection 1A। फ्रेंड्स, अगर आप कोई इंडियन सिटीजन है और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है एंड वो इंडिया में 120 डेज से ज़्यादा बट 182 डेज के अंदर रहता है एज पर एक्सपेंशन 1B, तो वो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ट्रीट किया जाएगा। एंड सेकंड है एन इंडियन सिटीजन हु इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट इंडिया। अभी नाउ आप बोलोगे व्हाट इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट, वो मैं आपको नेक्स्ट साइड में आपको मैं समझाता हूँ कि व्हाट इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट इंडिया।
deemed resident. Now again, this is the new tricky situation. The Income Tax Act has amended and inserted new clause section 6(1) in Finance Act 2020. In another significant amendment from financial year 2020-21 onwards, an Indian citizen, an individual who is a citizen of India, who is not liable to tax, यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मैंने हैशटैग किया हुआ है, स्टार किया हुआ है, who is not liable to tax in any other country will be deemed to be resident in India. और इसका मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, मैं आपको समझाता हूँ. The condition for deemed residential status, the condition for deemed resident status applies only if the total income other than foreign sources exceed rupees 15 lakhs and nil tax liability in any other countries or territories by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature. यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में समझा कि what is foreign sources. The expression foreign sources means the income which accrue or arises outside India, including the tax-free salary income, except income derived from a business control or setup in India, and which is not deemed to occur in India. इसका मतलब फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है. जो भी फॉरेन सोर्सेज से आपको इनकम होती है, लाइक आपका बिजनेस फॉरेन में है, तो उसकी पूरी इनकम वो 15 लाख से ज्यादा है कि नहीं, वो काउंट हम लोग देखते हैं. एंड अगर कोई टैक्स फ्री इनकम है, दुबई आपको मालूम है, यूएई, गल्फ कंट्रीज में जो भी टैक्स वहाँ पे टैक्स नहीं है, तो टैक्स फ्री इनकम को काउंट नहीं किया जाता है. सो डीम्ड रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए आपकी फॉरेन सोर्सेज इंडिया में 15 लाख के ऊपर है एंड आप आउटसाइड इंडिया कहाँ पे भी टैक्स पे नहीं करती हो. अभी ये कैसे पॉसिबल है? लेट से दुबई में आप टैक्स पे नहीं करते बिकॉज दुबई इज ए टैक्स फ्री कंट्री. एंड लेट से अगर आप कोई यूके, यूरोप, कोई भी कंट्री में हो जहाँ पे टैक्स नहीं है एंड वहाँ पे आप कंटिन्यू स्टे है, डोमाइसाइल है एंड एनी द क्राइटेरिया, तो you are, I will not say that you are avoiding the tax or you are escaping the tax, but by reason of certain exception rule आप आउटसाइड इंडिया में रेसिडेंट भी नहीं हो और वहाँ पे टैक्स पे भी नहीं करते हो और आपकी इंडिया में इनकम 15 लाख से भी ज्यादा है, देन यू आर ट्रीटेड एज ए डीम रेसिडेंट इंडिया. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बोल सकते हो या तो इंसर्शन बोल सकते हो, फाइनेंस 2020 ने किया है. इसका मतलब आप कोई भी कंट्री में पे नहीं करते हो टैक्स, तो आप अगर और आपका इंडिया में टैक्सेबल लेट से इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो देन यू आर ट्रीटेड एज ए डीम रेसिडेंट इंडिया. इसका पर्पज यही होता है कि फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, कोई पर्सन दुबई में लेट से दुबई में रहता है 30 डेज, उसके बाद वापस जाता है अफ्रीका, देन वापस जाता है 60 डेज के लिए यूएसए, तो कोई भी कंट्री में ज्यादा स्टे नहीं करता है एंड ही इज डूइंग द टैक्स प्लानिंग, ही इज स्टेइंग वेरी लेस डेज इन एवरी कंट्री. तो वो पर्सन अगर इंडियन ओरिजिन का है और इंडियन सिटीजन है, तो वो डीम रेसिडेंट कहा जाएगा. टू डिफाइन द टर्म लायबल टू टैक्स, यहाँ पे मैंने ये एक्सटेंड किया था. Kindly refer the proposed amendment made in Finance Act 2020. If a person not liable to tax in any other country and if he visits India and his total income other than income from foreign sources exceed 15 lakhs, then even if he visit India for one day, he will be treated as a resident but not ordinary resident. मैंने आपको बोला ना वहाँ पे एक्सेप्शन है, रेसिडेंट बोला जाएगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है. एन इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल है, इफ इज नाइदर सेटिस्फाइंग द बेसिक कंडीशन, स्लाइड नंबर 2 में मैंने आपको पहले ही बोला था, तो वो नॉन रेसिडेंट बोला जाएगा वो ईयर के लिए. एंड फ्रेंड्स वंस यू आर फॉलिंग अंडर द नॉन रेसिडेंट ब्रैकेट, देन ओनली जो भी इंडिया में आप इनकम अर्न करते हो वही टैक्सेबल होगी. आउटसाइड इंडिया जो भी आप इनकम अर्न करते हो वॉट एवर फ्रॉम योर एनी सोर्सेज, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी. नाउ फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना सिचुएशन, लास्ट ईयर 2020 में बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स और बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया में ड्यू टू दिस लॉकडाउन कंडीशन इंडिया में थे. तो ये सर्कुलर नंबर 11 2020 जो 8 मई 2020 प्रीवियस, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्रीवियस ईयर 2019-20 के लिए ही है. ये मैं सर्कुलर आपको जस्ट पढ़ के आपको मैं बताता हूँ. एज पर दिस सर्कुलर
for previous year 2019-20. In case of an individual who has come to India on a visit, अगर 22 मार्च के पहले विजिट के लिए आए थे, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कंडीशन इफ ही अनेबल टू लिव इंडिया, देन 22 मार्च से लेकर 31 मार्च का जो पीरियड है वो काउंट नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द रेसिडेंस स्टेटस। बिकॉज फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि बहुत सारे पर्सन होम क्वारंटाइन और कहाँ पे भी स्टक हुए थे बिकॉज ऑफ दिस नोवेल कोरोना वायरस सिचुएशन। तो डिपार्टमेंट हैज गिवन द रिलीफ दैट दे विल नॉट कैलकुलेट द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया from 22nd March to 31st March 2020. Only there is a specific reason that he has been quarantined in India because of novel coronavirus situation after 1st March 2020, and अगर वो he has departed on an evacuation flight on or before 31st March 2020, or he has been unable to live in India because of coronavirus situation, then only it will be applicable. C has departed on an evacuation flight on or before 31st March 2020. His period of stay in India from 22nd March to the date of departure, whatever, shall not be taken into the account. But friend, बहुत ही आपको मालूम रहेगा कि this situation has been extended to financial 2020-21 and current also. But as of now, there was no relaxation given for financial year 2020-21 and further also. And with the lockdown extending for this whole the year, Supreme Court direct the taxpayer to approve the CBDT and seek relaxation in their residential norms on account of COVID-19 situation till any official announcement released. So friends, you have to either contact the CBDT or you have to seek relaxation through certain process only for this financial 2020-21 and further for the current year. So friends, with this presentation, I have just discussed about the very important aspect of residency status in India, how to determine the residency status, so that once your residency status has been determined, your tax liability, whatever arises, will be applicable and you have to file the return in India. फ्रेंड्स, अब अगर आपको मेरा ये वीडियो एंड प्रेजेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगती है तो देन यू कैन ऑल्सो share with your friends, with your office colleagues, so that everybody will get very important information. Thank you friends. If you have any query, you can write comments also. Share my video, subscribe my YouTube channel. Thank you.